Hello, friends. The topic I thought of taking up today is related to Botox and skincare treatment and regime and all related things. Of course, I want to make it short and sweet because there is no end to this topic. But what caught my eye and attention was an increase in its use. Some trends die their natural death, but this is only just increasing. To begin with, Botox was used as for medical purposes, as a medicine, and slowly it came for other uses, for cosmetic purposes, and then there was no looking back. People just started using Botox for maybe delaying youth, maybe avoiding wrinkles. It became a kind of panacea for keeping age and wrinkles away. And because of that reason, basically Botox was being used by people who were slightly mature in age and more in celebrities, among celebrities, because they thought that their face is their bread and butter. Anyway, celebrities hardly rely on talent. Most of them only rely on what they project. Now this became a concern that to maintain their so-called beauty or what they thought was youthfulness, they resorted to Botox. But this trend did not die there. Slowly, they started setting up standards for saying that this is what youthful is and this is how you should look at 40, 50, 30, 20, whatever it is. And they started setting standards which other people thought that they were obligated to follow. Naturally, as expected, the usage of Botox came down to younger age groups. When people in their 20s began to use it, not because they were looking old or wrinkly, they never wanted to look old, they never wanted to develop those wrinkles, and they started using Botox. Now, when you are in 20s, you're still an adult and people feel that maybe you have weighed the pros and cons and you have taken this decision. But this trend did not stop there as well. It percolated down और छोटे बच्चों पे आ गया. और अब जाके ये ट्रेंड कहाँ टिका है? Gen Z, tweens, छोटे छोटे बच्चे और अब तो बच्चे जो 13 and below हैं, अल्फा जनरेशन, उनमें ये ट्रेंड बहुत पॉपुलर हो गया है. Now it has become extremely worrisome. छोटे छोटे बच्चे जो 12-11 साल के हैं, वो कॉस्मेटिक शॉप्स में जाते हैं, लाइनअप्स में जाते हैं, दे गो टू द आइल्स ऑफ दीज शॉप्स और वहाँ पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे होते हैं. इनको आप लोग सिफोर जनरेशन भी कहते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज जो ब्रांड इनको बहुत अपील करता है उसको ये सिफोर बोलते हैं. तो वहाँ पे ये खड़े होते हैं और वहाँ के खूब सारे कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं और उसको यूज़ करने लग गए हैं. ये बहुत डर की बात है क्योंकि उनकी तो स्किन अभी पूरी मैच्योर भी नहीं है, डेवलप भी नहीं है कि वो बैरियर्स फॉर्म कर सके. और जो रिंकल्स अभी स्किन ही पूरी फॉर्म नहीं है, जो रिंकल्स कभी आएंगे ये उनको भी रोक रहे हैं. Actually, Botox was a minimally invasive, procedure for a wrinkle-free, youthful skin, and it was used, as I said, for middle-aged people to increasingly look youthful. But in India, Botox is becoming a pre-wedding trend. Gen Z now it's calling is baby Botox. छोटे छोटे इंजेक्शंस में, छोटे छोटे एरियाज में आप कहीं ना कहीं ये ट्रीटमेंट लेते ही जा रहे हैं. और ये क्या है? डर, बूढ़ा होने का डर, ओल्ड हो जाने का डर, अपने से ज़्यादा उम्र का दिखने का डर, अपने को छोटा दिखाने का डर. इस डर की वजह से हमने अपने बॉडी के ऊपर ऐसे ट्रीटमेंट्स लगाने शुरू कर दिए हैं. कभी कभी मसल्स वेस्ट अवे हो जाती हैं और ये नहीं है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आपके रैशेस होते हैं, स्वेलिंग होती है, सेंसिटिव स्किन होती है, नॉशिया हो सकता है, ब्रूजेस हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकते हैं. कॉस्टली तो है ही, बहुत महंगा है. कहते हैं ना कि कम से कम $500 का एक ट्रीटमेंट पड़ता है और 3 महीने के बाद उसका इफेक्ट चला जाता है. आपको मल्टीपल सेशंस कराने पड़ते हैं. तो ये इट इज़ लाइक ईटिंग इनटू योर मनी. आपके रिसोर्सेज भी बहुत खाता रहता है. और जेन जी जो है वो क्या बोलते हैं, पैसे फेंक रही है. दे आर थ्रोइंग मनी एज इफ देयर इज नो टुमारो एंड सब कुछ ही यंग दिखने में रह गया है. कहाँ से इनको ये रोल मॉडल्स मिल रहे हैं? आई थिंक कहीं हमारे पेरेंट्स की गलती है. जो इनके माँ बाप हैं, पैसे तो वही दे रहे हैं ना, शायद इनकरेज भी वही कर रहे हैं. क्या समझा नहीं पाए कि उनको ना इस चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत तो वैसे हम में से किसी को भी नहीं है, अनलेस कि आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ गई है. पर फिर भी एज एडल्ट्स आपकी चॉइसेस हो सकती है. पर छोटे छोटे बच्चों के लिए ये जो हमारा फोकस है परफेक्ट स्किन होने का,
इट हैज ट्रिकल डाउन टू जेन अल्फा, जो अपने ऊपर स्किन प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इट इज़ अ वार्निंग बेल कि कल को वी हैव नॉट ट्राइड ओवर ईयर्स कि इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मसल एट्रोफी हो सकती है, मैल फंक्शनिंग हो सकती है, कुछ मसल्स डाई कर सकते हैं धीरे धीरे, और क्या इफेक्ट होगा आप पे अभी हम गेज नहीं कर सकते। और जो सेफोरा प्रोडक्ट्स हैं, ये सेफोरा किड्स वहां जाते हैं और आजकल एक 17 स्टेप स्किन केयर रूटीन आता है, उसको फॉलो करते हैं। और इतने अमाउंट का मनी स्पेंड करके जो ये यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह है, उनको देख के एक परफेक्शन, झूठी परफेक्शन के पीछे भागते रहते हैं। वो लोग क्या क्या चीजें क्रिएट करके अपने को परफेक्ट दिखाते हैं। ये वैसे ही ओल्डर स्किन के लिए प्रोडक्ट्स हैं। जब आप इतनी छोटी उम्र में इनको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैकफायर करेगा। स्किन केयर, बेबी एक्ने क्रीम्स, ये सब क्यों एग्जिस्ट करता है? बेबीज के लिए एक्ने की स्किन, ये बेबीज की तो स्किन को क्या चाहिए? सिर्फ आप घरों के ट्रीटमेंट्स यूज करें, वो भी बहुत है। हम एक एडिक्टिव कल्चर में है। वी आर ऑल इन एन एडिक्टिव कल्चर। एक स्किन केयर एडिक्शन हो गया है कि आप सोच सकते हैं कि स्किन केयर, उसके साइट के ऊपर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, 2 मिलियन। और स्किन केयर रूटीन हैज 55 बिलियन सब्सक्राइबर्स। कितना एडिक्शन है, कितना पागलपना छाया हुआ है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए। दे आर रिडिक्यूलिंग रिंकल्ड स्किन और एनी स्किन विद एनी ब्लेमिश। कौन होते हैं वो लोग ये स्टैंडर्ड सेट करने वाले या बताने वाले? दे कॉल देम स्कॉर्चेस, कि ये स्कॉर्चेस हैं, ये एक बहुत गलत चीज है जो आपके ऊपर हो गई, आपके रिंकल्स कैसे आ गए, ब्लेमिशेस कैसे हो गई। ये इन्फ्लुएंसर्स की तो लिटरली पिटाई लगनी चाहिए, बिकॉज दे आर स्पॉइलिंग एन एंटायर जनरेशन। वो खड़े होते हैं स्क्रीन के आगे एंड व्हाइल दे आर रिपिंग द पोर स्ट्रिप्स फ्रॉम द फेसेस, स्माइल कर रहे होते हैं कि तो बहुत अच्छा प्रोसीजर है। विद स्माइल दे आर रिपिंग पोर स्किन्स एंड दे आर वो स्टिंगिंग क्रीम्स लगा रहे होते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स वो आगे बहुत बढ़ बढ़ के दिखाते हैं। और एक ग्रोइंग मार्केट सेगमेंट है जिसको ये सब लोग बहुत केटर करते हैं। कंपनीज का क्या है? दे जस्ट वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट, दे जस्ट वांट टू मेक मनी। तो वो तो आपको ड्रीम बेचते हैं और आपको उस ड्रीम को खरीदने को कहते हैं। जो ड्रीम होती है आपकी ऑब्सेशन बन जाए तो वार्निंग बेल है। जब आप सारा टाइम शीशे के आगे खड़े रहें और एक छोटी छोटी पोर को देखते रहें, हर स्किन के रिंकल को देखते रहें, तो एक वार्निंग बेल का साइन है। जब आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक कंफर्टेबल ह्यूमन बीइंग कैसे हो सकते हैं? और जहां कहीं भी हम लोग इतनी चीजें बैन करते हैं, जहां कहीं भी गलत रोल मॉडल सेट हो रहे हैं, गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं, we all should actually talk about it and we should actually think about कि क्या हमें ये 20 स्टेप रूटीन्स, ये स्किन केयर रूटीन्स अपने बच्चों के लिए प्रमोट करने चाहिए? कि क्या हमें हेल्थी लाइफस्टाइल्स एंड हेल्थी इनटेक ऑफ फूड पे फोकस करना चाहिए? शुड वी पुट सो मच मनी ऑन दीज थिंग्स? हमारे सेलिब्रिटीज को भी इस कल्चर से बच्चों को डिसोसिएट करने की जरूरत है। पेरेंट्स के लिए वार्निंग बेल है। और इन्फ्लुएंसर्स तो खैर क्या कहें, बहुत गलत इन्फ्लुएंस है। सो आई होप वी ऑल लुक एट इट in a more objective manner and discourage our very young children into going for this obsession and addiction about their skins. Just tell them a child should just look a happy child, और happiness जैसी glow किसी product में नहीं है. So have a great day all of you and please share your thoughts.